السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان ریاضی۔ ناظرین، جشن آزادی کی آمد ہے اور جشن آزادی کی تقریبات کا سلسلہ ملک بھر میں، جنوبی پنجاب میں، ملتان میں بھرپور انداز میں جاری ہے اور زندہ قومیں اپنی آزادی کے دن، اپنی تاریخ کے دن خوب شان و شوکت کے ساتھ مناتی ہیں، کیونکہ آزادی ایک نعمت ہے اور اس عظیم نعمت کا اندازہ انہیں ہو سکتا ہے جو اس وقت آزادی سے محروم نظر آتے ہیں۔ آج کے دن 13 اگست کا دن ہے، 14 اگست کل ملک بھر میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا۔ آج اس حوالے سے ہر جگہ تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے، چھوٹے بچے اور اس کے علاوہ بڑے نوجوان اگر ہم بات کریں تو سب آزادی کے رنگ میں رنگے نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اس ملک کے حصول کے لیے، قیام پاکستان کو بنانے کے لیے، قیام پاکستان کو بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو استحکام کرنے کے حوالے سے بھی ہمارے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں شامل ہیں اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہم نہ تو 1947 کے شہداء کی قربانیوں کو بھولیں اور نہ ہی 1965، 1971 اس کے علاوہ جو دیگر ادوار میں جنگوں کا سلسلہ جاری رہا، اس کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کی حفاظت کی خاطر قربانی پیش کرنے والے سیکورٹی فورسز کے نوجوانوں کو کوئی نہیں بھولا اور آج بھی ان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے اور ہم آج بھی اس حوالے سے ہر کوئی عہد کرتا نظر آتا ہے کہ 14 اگست کا دن ہو یا ماہ اگست جب سے شروع ہوتا ہے تو ان دنوں میں ان لوگوں کو بھی یاد رکھا جاتا ہے جنہوں نے اس ملک کو محفوظ بنانے کے لیے، اس ملک کو استحکام دینے کے لیے، اس ملک کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم اس وقت ملتان کے تاریخی مقام گھنٹہ گھر پر پہنچے ہیں اور جہاں بھی اس حوالے سے ہم ایک سٹال پر پہنچے ہیں اور جہاں پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ کافی رش ہے۔ بھائی جان کیا خریدنے کے لیے آئے ہیں؟ جھنڈیاں خریدنے کے لیے۔ جھنڈیاں خریدنے گھر میں لگانے کے لیے بچوں نے کہا ہے؟ ہاں جی، بچوں نے کہا ہے۔ تو ہر سال سے جاتے ہیں اپنے گھر کو؟ سال سے جاتے ہیں۔ یہ جذبہ ابھی بھی قائم ہے اور بچوں نے کیا فرمائش کی ہے؟ بچوں نے فرمائش کی ہے کہ ہمارے لیے جھنڈیاں اور بیج وغیرہ لے آؤ، ٹھیک ہے، ہم 14 اگست کو انجوائے کریں گے، سیلیبریٹ کریں گے۔ بچوں نے فرمائش کی ہے کہ جھنڈیاں لے کے آئیں اور اس حوالے سے ایک اور بھی ہمارے ساتھ شاعر موجود ہیں۔ کیا کہیں گے 14 اگست کا دن کیسے مناتے ہیں؟ لگتا ہے شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں بچوں کے ساتھ؟ ظاہری بات ہے کہ بھئی ان کے بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے نہ آئے۔ تو کیا بچوں نے فرمائش کی تھی؟ ہم بچوں نے کہا ہے کہ بھئی پینے ٹاپس وغیرہ ایسے سب چیزیں لیں گے۔ گھر سجایا ہے، جھنڈیاں شنڈیاں لگائی؟ ہاں، کیوں نہیں سجایا۔ بیٹا کیا کہیں گی، کیا لینے کے لیے آئی ہیں آج بتائیں ذرا۔ اچھا پاکستان زندہ آباد کہیں، پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگانا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ آباد، یہ وہ جذبہ ہے۔ اچھا بھائی جان کیا کہیں گے 14 اگست کل منانے جا رہے ہیں ہم، کتنا جوش ہے؟ جوش تو بہت ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، اپنے سے بڑھ کے۔ اپنے سے بڑھ کا جوش ہے اور آج بچوں کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں۔ ہاں جی، کام سے ابھی آئے ہیں، کہتے ہیں ہم نے یہ کپڑے لینے ہیں، یہ فلاں لینا ہے، یہ لینا ہے۔ شرٹس لینی ہے، بچوں نے شرٹس لینی ہے۔ ہاں، اس کے لینے ہیں۔ اچھا اور یہ دونوں بچوں جہاں دونوں بچوں کو لے لیں۔ جی بالکل، جوش اپنے سے بڑھ کر ہے، یہی جذبہ ہے اور اس حوالے سے یہی جذبہ بتاتا ہے کہ زندہ قومیں اپنے جو دن ہوتی ہیں، اپنے آزادی کے دن ہوتے ہیں، وہ خوب شان و شوکت کے ساتھ مناتی ہیں۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں بھی فیملیز کو بھی دیکھیں گے کہ فیملیز کس طرح جشن آزادی کی تیاریاں کر رہی ہیں، کس طرح منا رہے ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی ناظرین، اس وقت ہم پہنچے ہیں فاطمہ جناح ٹاؤن میں اور یہاں بھی اس حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ خواتین کی کافی بڑی تعداد موجود ہے، ہم جانیں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ میڈم بتائیے گا، جشن آزادی کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، خواتین بھی پاکستان کا 50% ہیں آبادی کا، تو خواتین کس طرح پاکستان کی جو فلاح ہے، پاکستان کی ترقی ہے، اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور آپ لوگ جشن آزادی کس طرح مناتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے انگ انگ میں موجود ہے، ہماری جو ہے جان مال ہر چیز اس چیز پہ قربان ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج کل کی جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہیں اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام بھی کر رہی ہیں اور ہر شعبے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین مردوں سے آگے ہی ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان کی فلاح و بہبود ہمارا پہلا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کو زیادہ سے زیادہ آگے لے کے جائیں، اور خواتین جو ہے آج کل کی وہ یہ چاہتی ہیں، ان کے اندر اتنی زیادہ انرجی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کو مزید بہتر بنایا جا سکے، اور اس کے لیے ہم کوشاں ہیں اور انشاءاللہ کوشاں رہیں گے۔ اچھا آپ لوگ کوشاں ہیں اور یہاں پر ایک کیک بھی آپ نے لے کے آئے، اس پہ پاکستان کا فلیگ بنا ہوا ہے، تو یہاں پر جشن آزادی کی تقریب کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ تو 14 اگست کا دن آتا ہے یا اگست کا مہینہ آتا ہے تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟
फीलिंग्स यही होती हैं कि बस इसमें हमारे फोर फादर्स ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे के हमारे लिए एक वतन हासिल किया है जो कि इस्लाम के नाम पे बना गया है। ये पहला मुल्क है जो कि इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया है। तो हमारी कोशिश यही है कि यही चीज़ अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करें और इस बड़े जोशो खरोश से इसे मनाया जाता है और बच्चों को ये हम अपने ट्रांसफ़र करते हैं कि हमारे बाद वो भी इस चीज़ को बहुत जोशो खरोश से मनाएं। और पाकिस्तान को जो है सबसे पहले कहते हैं ना, सबसे पहले पाकिस्तान, तो उसी आइन को मद्देनज़र रखते हुए हम कहते हैं, अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं ये चीज़ कि आप भी सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी प्रायोरिटी में रखें और उसे आगे लेके जाएं और उसकी फलाह व बहबूद की तरफ रखें। कि सबसे पहले पाकिस्तान को सामने रखना होगा और उसके बाद ही हमारे जो नज़रियात हैं, हमारे जो सकाफ़त है, हमारे जो ख्यालात हैं वो बात में मायने रखते हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। मैडम आप बताइएगा, नज़रिया पाकिस्तान की बात कर लें, जश्न आज़ादी की बात कर लें, तो यकीनन इस मुल्क के असूल के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ हैं लोगों की, हमारे आबा व अजदाद की। तो एक खातून के हैसियत से क्या समझती हैं कि आज के दिन जश्न आज़ादी के हवाले से लोगों को इकट्ठा करना और एक मैसेज देना, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और हमारे बड़ों ने, हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया है, तो हम इसमें आज़ाद हैं। और आज़ाद मुल्क, आज़ाद कौमें, आज़ाद नस्लें जानती हैं आज़ादी क्या होती है। और इस आज़ादी के मौके पर मैं कश्मीर के लिए ज़रूर कहूँगी कि उनके लिए आप दुआएं करें, हम भी दुआएं करते हैं कि आज़ादी क्या होती है, हम उधर भी देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमने पाकिस्तान हासिल किया है, इसीलिए हम पाकिस्तान के लिए जान भी देते हैं, देने को तैयार हैं। और कश्मीर के लिए भी हमने यहाँ ख़ुसूसी दुआ की है कि कश्मीरी भाई हमारे बहन भाई हैं, इस मौके पर सब लोग याद रखें और कश्मीर के लिए भी दुआ करें कि वो भी इस आज़ादी की नेमत से सरशार हों। जी यकीनन हम इस मौके पर कश्मीरी माओ बहनों भाइयों को नहीं भूले। आज हम जश्न आज़ादी की तकरीबात मना रहे हैं, लेकिन आज भी इस दुख के साथ हम मना रहे हैं कि हमारा कश्मीर भी जल्द आज़ाद हो और वहाँ के लोग भी हमारे साथ इस तरह की आज़ादी की खुशियाँ मना सकें। जहाँ पर केक भी काटा जाएगा और यहाँ पर तकरीब का आगाज़ होने जा रहा है। और इस हवाले से जो आप देख सकते हैं कि जो आज़ादी का जश्न है वो जनूबी पंजाब भर में जारी है। हर कम्युनिटी इसको भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट कर रही है और इस हवाले से सेलिब्रेशन का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर इस वक्त जो जश्न आज़ादी का केक है वो इस हवाले से काटा जा रहा है और इस अज़म का इजहार किया जा रहा है कि जो मुल्क पाकिस्तान के लिए हमारी तमाम जो लोग हैं वो हर किस्म की कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं और किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम आज जश्न आज़ादी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कल पूरे पाकिस्तान में जोशो खरोश के साथ जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। और आज हम मुख्तलिफ़ शख्सियात से बात कर रहे हैं, उन शख्सियात से जिन्होंने पाकिस्तान के हसूल में अपनी कुर्बानियाँ पेश की, उस जदोजहद में शामिल हुए। उसके साथ साथ वो लोग जो कि नज़रिया पाकिस्तान की तहरीक को अभी तक ज़िंदा रखे हुए हैं और इस हवाले से नौजवानों में, उसके साथ साथ कम्युनिटी में आज भी नज़रिया पाकिस्तान की बात करते नज़र आते हैं। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो आज भी इसकी ज़रूरत है और आज भी इस नज़रिए को याद करने की ज़रूरत है। तो हम इस हवाले से पहुँचे हैं मुल्तान में और हमारे साथ मौजूद हैं नज़रिया पाकिस्तान फोरम के जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद असलम साहब। हम उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान के हसूल के हवाले से जो तारीख़ है, आखिर क्या नौबत आई थी कि मुसलमानों को एक आज़ाद मुल्क हासिल करने के लिए इतनी कुर्बानियाँ देना पड़ी और उसके बाद उन्होंने ये मुल्क हासिल क्या, क्या तारीख थी, क्या जदोजहद थी, हम उनसे जानते हैं। कुरान और मुफक्कर इस्लाम हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं कुछ भी नहीं। हम जो मुसलमान हैं वो मज़हब के एतबार से कौमियत की तकसीम करते हैं, जबकि जो दीगर यूरोपियन हैं और मुस्तशरिकीन हैं वो तकसीम करते हैं इलाके की बुनियाद पे कि बरतानिया का बरतानवी। हमारे यहाँ इस्लाम में मुसलमान चाहे किसी मुल्क का भी हो, वो हमारी कौमियत का एक फ़र्द है, हमारी कौम का फ़र्द है। चाहे वो अंग्रेज़ी बोलता है, कोई ज़ुबान बोलता हो, किसी इलाके में रहता हो, कोई लिबास पहनता हो, हमारे यहाँ पहचान एक ही है कि एक हो मुस्लिम। हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताबा खाके काशगर, ये इस्लाम का एक तसव्वुर है। जहाँ तक कि अलहदा मुल्क लेने का मसला कि इसकी क्या ज़रूरत पेश आई, जबकि हम हज़ारों साल से एक ही जगह पर रह रहे थे।
बल्कि मैं समझता हूँ कि इंसानियत की जो तख्लीक और फैलाव का मंबा है वो भी हिंदुस्तान है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसी खित्ते में तशरीफ़ लाए थे और यहीं से इंसानियत पली फूली है आगे। तो हम तो तख्लीक आदम से आदम की ज़मीन पे आने से आज तक इकट्ठे रह रहे थे। तो आज तक इकट्ठे थे, तो 47 में हम अलहदा हुए, क्या रीज़न थी? और हम सारे फ़ख्र भी करते हैं कि हमने एक अलग मुल्क हासिल किया और लाखों कुर्बानियाँ देकर। तो क्या हालात पेश आ गए थे कि आखिर मजबूर हो गए इस खित्ते के लोग कि उन्हें अलग मुल्क चाहिए? सबसे पहले जो वाक़या पेश आया वो लॉर्ड वेवल एक यहाँ के वाइसराय थे, उनके ज़माने में पेश आया। भागलपुर सूबा बिहार का एक इलाका है, वहाँ पर मुसलमानों का हिंदू जो महाजन हैं उन्होंने एक फ़ोर्स बनाई और उन्होंने उनका बेदरेक कत्ल किया, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान, इनकी कोई तमीज़ नहीं की गई। इस कत्ल आम के बाद ही लॉर्ड वेवल ने, जो फ़ौजी था रिटायर्ड, उसने ये कह दिया था कि ये दो कौमें हैं और ये अलग अलग नहीं रह सकती हैं, इकट्ठे नहीं रह सकते, ये अलग अलग इन्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि इनके रस्म व रिवाज अलहदा, इनके मज़ाहिब अलहदा। वो समझते हैं कि गाय हमारी माँ है, हम उसका गोश्त खाते हैं। वो गाय का पेशाब शिफा समझते हैं, हम आब ज़मज़म को शिफा समझते हैं। कह सकते हैं ये कायद की बसीरत थी कि जो पहले जांच गया ये सारे हालात जो हम आज इंडिया में हिंदुआता स्टेट देख रहे हैं, जहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि वहाँ हिंदुज़म का प्रचार किया जा रहा है, तो ये कायद की बसीरत थी कि 73 साल पहले वो जान गए थे कि हमें एक अलग मुल्क बनाना चाहिए। जी, जान गए थे। उसकी वजह ये थी कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर थे बुनियादी तौर पे, वो चाहते थे। लेकिन उन्होंने कुछ बातें पेश की थी कि जहाँ जहाँ जिस सूबे में मुसलमान रहते हैं वहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत होगी, उसको अक्सरियत से अक़लियत में नहीं बदला जाएगा और वहाँ के कवानीन भी नहीं बदले जाएंगे। हम फेडरेशन में रहने के लिए तैयार हैं जी। तो उसके लिए था, लेकिन हिंदू जो है वो बड़ा मुतासिब है और वो कतन ऐसे हालात जो है ना कबूल नहीं करता था, तो इत्तिहाद को पसंद नहीं करता था। वो अखंड रहना चाहते थे, मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते थे। यही दो वाक़यात इसके अक्कास हैं। इसके अलावा ईद की नमाज़ पढ़ना, मस्जिदों में जाना, हम मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते वो ढोल बजाते थे, हैं जी, बेहुरमती करते थे। तो इस तरह के हालात उन्होंने, फिर इसके अलावा ज़बरदस्ती अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी वंदे मातरम का गीत गाने पर मजबूर किया गया था और हमारी इस्लामी रवायात को वो ख़त्म करना चाहते थे। और इसके अलावा एक और मैं बात बताता हूँ कि एक जो था मोंजे, डॉक्टर मोंजे ने कुछ तहरीकात शुरू की थी। एक तहरीक का नाम था शुद्धि के मानी ये थे कि जो लोग हिंदू हो गए हैं, हिंदू हैं और हिंदू से इस्लाम कबूल कर लिया है, उनको वापस उनके धर्म में लाया जाए। और इसके साथ ही एक और तहरीक थी कि अगर वो वापस ना आए तो उसके लिए उन्होंने एक फ़ोर्स तैयार की, सिंगटन जिसका नाम रखा। और सिंगटन तहरीक का मकसद ये था कि उनको छुरे मार कर जो है कत्ल कर दिया जाए। तो ये तो सूरत हाल इंतहाई खौफनाक थी। लेकिन इसका मुकाबला भी डॉक्टर सैफुद्दीन ने, जो मुसलमान थे, उन्होंने तबलीग और तंजीम की दो तंजीमें बनाकर इसका मुकाबला किया, सामना किया। आज हम देख रहे हैं इंडिया में जिस तरह आज वहाँ मुसलमानों की बात की जा रही है कि वहाँ पर शहरियत बिल की बात की, तो वो हालात पहले भी थे। अच्छा, हम आखिर में जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान बन गया, नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कितना लाजमी है? आखिर में क्या पैगाम दिया उस हवाले से? आज ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी मैं बरमला ये बात कहता हूँ कि कोई सराइकी है, पंजाबी है, बलोच है, ये जितनी तहरीकात हैं ये गैरों के इशारे पे चल रही हैं, उनकी फंडिंग पे चल रही हैं। हुकूमत को फर्स्ट टाइम ये चाहिए कि तमाम तहरीकात जो हैं इनको मुल्क से ख़त्म कर दें अगर वो पाकिस्तान की बका चाहते हैं। और नज़रिया पाकिस्तान एक ही बात है कि यहाँ बलोच कोई कौम नहीं है, यहाँ पठान कोई कौम नहीं है, यहाँ जो है सिंधी कोई कौम नहीं है, महाजर कोई कौम नहीं, सराइकी मकरानी कोई कौम नहीं, हम सिर्फ मुसलमान हैं।
नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना नज़रिया पाकिस्तान कितना लाजमी है, उस हवाले से यही पैगाम दिया गया है कि नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग़ देना होगा। और जैसा कि नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद पर हमारा ये मुल्क वजूद में आया, तो लिसानियत की बजाय हमें पाकिस्तानियत और मुस्लिम को जो इस हवाले से हमारी चीज़ें हैं उनको फ़रोग़ देना होगा। हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आज बात कर रहे हैं क़याम पाकिस्तान के हवाले से। क़याम पाकिस्तान के हसूल के लिए लाखों कुर्बानियाँ दी गई, और उस हवाले से जो उस वक्त के जो लोग थे, उस वक्त जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा, पाकिस्तान के हसूल के दौरान जो जदोजहद की, वो मनाज़िर अभी भी उनकी आँखों के सामने ज़िंदा हैं, और उस हवाले से वो याद करते हैं, और उस हवाले से वो वक्त याद करते हैं तो उनको इस बात का एहसास होता है कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ। आज हमें तो इस हवाले से उस दौर का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आज हम पहुँचे हैं एक ऐसी फैमिली के पास। खलील अहमद हैं जो कि उस वक्त 21 साल के थे जब पाकिस्तान बना, और जब आज़ादी की मूवमेंट जारी थी, तो जिस तरह कायद ने कहा था कि नौजवानों का एक किरदार था, नौजवानों ने इस तहरीक को शुरू किया था और गली गली में कायद का पैगाम पहुँचाया था। तो खलील भी कायद के सिपाही थे, हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ जी। अच्छा अंकल, ये बताइएगा जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त आपकी कितनी उम्र थी? मेरी उम्र 21 साल थे। 21 साल थी। तो किस तरह पता चला कि पाकिस्तान बन गया है? कहाँ से पता चला? रेडियो से पता चला या कोई वहाँ पर शुरू हो गई थी कुछ चीज़ें? नहीं, वो तो अनाउंसमेंट हुआ था तो पाकिस्तान बन गया। कायद आज़म ने कराची के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन के साथ सारा चार्ज संभाला था एज गवर्नर जनरल, समझ गए। तो वो बस उसके बाद हम वहीं पड़े रहे। मेरी वालदा, मेरा भतीजा, बड़े भाई का बेटा और एक मुलाजिम था, वो भिवानी में थे, तो समझ गए। वहाँ से बड़ी मुश्किल से वो जान बचा के और कैंप तक पहुँचे थे। जींद में जितने मेरे रिश्तेदार थे तकरीबन 70% जो थे वो वहाँ शहीद हो गए थे। 70%? मेरे 2 भाई, बड़े भाई, वो शहीद हो गए थे, उनकी फैमिली शहीद हो गई थी। मैं सबसे छोटा, तो 2 भाई जो थे बड़े, एक भाई का एक बेटा और एक बेटी, वो बच के किसी तरह कैंप में पहुंच गए थे। ये कैंप कहाँ पे था? कराची में था या वहीं मुंबई के करीब? कैंप किस जगह पे था जो कैंप किया गया था? हाँ, ये कैंप कहाँ पे था जो कैंप बनाया गया था? वो किस इलाके में था? वो था अपना एक भाई मेरे हांसी में थे, तहसील हांसी, ज़िला हिसार में। तो वो मेरी जो भाभी थी उनको फालिज का अटैक हुआ था और डिलीवरी भी हुई थी। तो वो बेटा जो था मेरा भतीजा, वो वहीं दूध ना मिलने की वजह से शहीद हो गया। उन पे हमले हुए, वो मेरे भाई जो थे भाभी को कंधे पे डाल करके अपनी छत से दूसरी छत पे कूदे, लेकिन वो हिंदू आ गए थे, समझ गए। उन्होंने आ करके उनको पकड़ लिया और बलम मारे और नीचे कमरे के अंदर डाल के ऊपर तेल छिड़क के आग लगा दी, समझ गए। तो उसके बाद एक भतीजा मेरा और एक भतीजी और उनकी नानी, वो किसी तरह से बच के, वो भी जल गए थे, लेकिन वो छुप गए बीच में। जो वो जल्दी से अपना उनको जला करके निकल गए थे। वो फिर कैंप में पहुंच गए। कैंप से फिर वो स्पेशल ट्रेन से इधर बॉल नगर वगैरह से होते हुए यहाँ मुल्तान आ गए थे। मैं बड़ा भाई जो थे उनकी भी इसी तरह फैमिली शहीद हो गई थी। एक बच्चा, एक बेटा और एक बेटी बचे थे। मेरे ताया थे, समझ गए, मुफ्ती थे जींद स्टेट के, और मेरे वालिद भी मुफ्ती थे। तो वो वालिद जो थे वो इत्तेफाक से उस वक़्त
एक डेथ हो गई थी तो जरखाई के लिए बीकानेर गए हुए थे। हम राजपूत ख़ानदान से हैं। आज़ादी का ऐलान हुआ तो रोहतक में भी फसाद शुरू हो गए थे? नहीं, रोहतक में किसी हिंदू को या जाटों को जुर्रत ही नहीं हुई कि रोहतक पे वो हमला करते। नहीं, वो नहीं कर सके क्योंकि चारों तरफ ये अपना राजपूतों के गांव थे, मुस्लिम राजपूतों के। वो वहाँ पर आम तौर पर सारे फौजी थे, समझ गए। तो वो उन पे किसी सूरत हिम्मत नहीं पड़ी उनके कि आपके वालिद थे और आपके भाई, तो आपको कब पता चला कि वो उस में शहीद हो गए? वो मैं बतलाऊँ ना, मैं रोहतक में था। रोहतक से मुझे वो छोटू राम जो एडिटर थे, उन्होंने मुझे डीसी से कह करके वो दिला दिया था एक रेड क्रॉस का ट्रक, समझ गए। तो मैं खुद अपनी कॉलेज की वर्दी पहन करके यूटीसी की वो मैं गया था। वहाँ का जो तहसीलदार था उसको वो छोटू राम ने एडिटर ने ही मुलाजिम कराया था। तो उसको उन्होंने ख़त लिखा था कि भाई खलील की वालदा और उसका भतीजा और मुलाजिम यहाँ हैं। तो वो कैंप वाले डर के मारे बतलाते नहीं थे कि पता नहीं इनके साथ क्या सलूक करें। तो खैर वो उसने कहा कि जी हाँ वो नहीं है, लेकिन थे वो वहीं। मैंने उन्हें कहा जी मैंने वो वहीं हैं। फिर मैंने कहा मैं खुद जाता हूँ वहाँ। कैंप पहुँच गए तो सारे में शोर मच गया कि खलील आ गया, खलील आ गया, समझ गए। वो वालदा आ गई और वो अपना भतीजा भी आ गया, नौकर भी जख्मी था, उसके यहाँ गोली लगी हुई थी, वो भी आ गया। खैर मैंने फ़ौरन उनको ट्रक में बिठाया, खाना में साथ ले गया था, खाना खिलाया दिया उसको। और वो तहसीलदार ने कहा बस आप जाएँ, आप ले जाएँ, रोहतक चले जाए। वहाँ से हम फ़ौरन रोहतक आ गए। तो जब मेरे जो दो खालाजाद भाई थे वो जीन से, वो ज़ख्मी थे, वो बच गए थे। वो उनके एक के यहाँ बलम लगा था और इधर निकला हुआ था, वो सारा सूजा हुआ था और पीप पड़ी हुई थी और बहुत बुरी हालत थी। इसी तरह दूसरा उसका छोटा भाई जो था, उसके यहाँ पाँव में उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी, वो उसके बजाय वो बलम जो थे ना वो पाँव के अंदर घुस गए। वो भी सारा पीप पड़ी हुई थी और सारा वो किसी तरह छुपते छिपाते लंगड़ा रेंगते हुए वो वहाँ रोहतक के पास एक गांव था, कोई 15-16 मील के फासले पर, वो वहाँ पहुँच गए थे, समझ गए। वहाँ से इतला आई तो मैं फिर चौधरी छोटू राम की तरफ से एडिटर की वसातत से ट्रक ले करके मैं वहाँ पहुँचा, उनको रोहतक ले आया। वहाँ ला करके उनका ड्रेसिंग वगैरह कराई, सारा कुछ कराया। तो ये नवंबर का टाइम आ गया था तकरीबन, आज़ादी के 2-3 महीने 4 महीने बाद। तो हम वहाँ से हमारी जो स्पेशल ट्रेन थी वो 6 तारीख को चलनी थी, शाम को 5 बजे। तो हम सारे वहाँ पहुँच गए, समझ गए। और अपना वो जो ट्रेन थी उसके अंदर एक बोगी के अंदर वो 3 उसके अंदर ओपन वो ट्राले थे ट्रेन के, एक इंजन के साथ, एक इंजन के दरमियान में, एक गाड़ी के स्पेशल ट्रेन के पीछे। तीनों में बलोच रेजिमेंट के जवान थे। उन्होंने वो पुश्ते लगाए हुए थे अपना ये बोरियों के, समझ गए। और उसके साथ मशीन गनें फिट की हुई थी। ब्यास का स्टेशन ऐसा था कि वो ये तकरीबन 2 बजे का टाइम था, दिन के 2 बजे का टाइम था। ब्यास का स्टेशन ऐसा था कि वहाँ दोनों तरफ सिखों की, हिंदुओं की आबादी थी, सिखों की ज़्यादा थी। उन्होंने वहाँ कत्ले आम किए थे,
कोई भी गाड़ी स्पेशल ट्रेन खैरियत से नहीं जाने दी थी, समझ गए। अब वो तो बहुत ख़तरनाक स्टेशन था। मैंने वो बलोच रेजिमेंट के जवानों को ऊपर चढ़ा करके मैंने कहा भाई देखो ये इधर भी और इधर भी, ये तो नहायत ख़तरनाक है और पता नहीं क्या नतीजा निकले। तो सारे घबराए हुए थे, कलमा पढ़ रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे। बस उन्होंने कहा कि जी आप इत्मीनान रखें, हमारे पास एमिनिशन है, मशीन गने हैं, समझ गए, हम इन्हें भून देंगे, कोई किसी को करीब नहीं आने देंगे। उन्हें भी पता चल गया कि भाई इस ट्रेन के साथ बलोच रेजिमेंट के जवान हैं और मशीन गने फिट हैं। तो फिर किस तारीख को पहुंचे थे पाकिस्तान? कब पहुंचे थे? कौन से दिन पाकिस्तान? फिर कब पहुंचे थे? 7 सितंबर को 2 दिन बाद पहुंचे थे। वही मैं बतला रहा हूँ ना। तो वो 2 घंटे लग गए, 2-2.5 घंटे लग गए कि वो पानी ले करके जब आया तो फिर वो उसने कनेक्ट करके और विसल दी और वो लोगों ने कुछ थोड़ा सा उनको हौसला हुआ। अमृतसर से नेक्स्ट साथ ही अमृतसर था। ये ब्यास स्टेशन जो है दरिया ब्यास के किनारे पे है, तो नेक्स्ट अमृतसर था। अमृतसर से हमारी स्पेशल ट्रेन रन थ्रू हुई, वो आ गई अटारी पे। अटारी क्रॉस जैसे की है सरहद, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, सजदे में गिर पड़े, चूमने लग गए। बस फिर लाहौर आ गए, लाहौर से वाल्टन आ गए, वाल्टन कैंप था, वहाँ रहे, शाम तक वहाँ रहे, समझ गए। 6 तारीख को चले थे तो ये वहाँ वाल्टन में हमें 8 तारीख हो गई थी। 8 तारीख को फिर हम वाल्टन से चले तो हम मुल्तान आए। इससे पहले रोहतक से पहले यहाँ कभी आए थे या पहली बार लाहौर पहुंचे थे? पहली बार आए थे। मैं आया था कॉलेज में, सेकेंड ईयर में पढ़ता था, तो मैं आया था यहाँ, लाहौर भी आया था और मंटगोमरी तक, ये साहिवाल तक भी आया था। तो उसके बाद छुट्टियों में आया था, मैं फिर वापस चला गया था। आखिर में सिर्फ ये बता दें कि आप पहली बार या दूसरी बार लाहौर पहुंचे थे, तो पाकिस्तान पहुंचकर क्या मनाजिर थे? नहीं, वो लाहौर से वाल्टन से हम आ गए यहाँ मुल्तान की तरफ। मुल्तान हमारा डेस्टिनेशन था। नहीं, जब आपने बॉर्डर क्रॉस किया तो उसके बाद जो वहाँ पे लोग थे तो वो खुश थे? क्या मनाजिर थे, कितने खुश थे जब आपने? वो तो मैंने बतलाया, वो सजदे में गिर गए थे जैसे ही क्रॉस किया है। अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर और ये वो सारा कुछ उन्होंने बड़ा शुक्र अदा किया कि हम सेफ एंड साउंड यहाँ पहुँच गए हैं। आपने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, आपकी फैमिली ने कुर्बानियाँ दी, आपके वालिदैन ने, भाइयों ने, तो आज क्या पैगाम देंगे? आज 14 अगस्त का दिन कल आने वाला है, क्या पैगाम देंगे? जो आज के नौजवान हैं क्या कहेंगे उनको? देखिए जी, पैगाम मैं क्या दूँ, मुल्क के हालात आप लोगों के सामने हैं, समझ गए। मेरा तो पैगाम यही है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, समझ गए। जिसने हमें पनाह दी है, जहाँ आकर के हमें ज़िंदगी मिली है। नाजरीन, जिस तरह आपने देखा, जाना, कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी अजीम कुर्बानियों के बाद ये मुल्क वजूद में आया। खलील अहमद साहब के ये आंसू बता रहे हैं कि ये मुल्क कोई आम मुल्क नहीं है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। 2 भाई कुर्बान कर दिए, भाभी कुर्बान कर दी, उसके अलावा कई रिश्तेदार अपना हंसता बसता घर छोड़कर जहाँ पहुँचे, इसलिए पहुँचे कि कहा गया था कि एक फलाई रियासत बनाई जाएगी। और खलील अहमद साहब का यही पैगाम है कि इस मुल्क के वजूद को बरकरार रखना है, इसको मज़ीद मुस्तहकम करना है। और इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम आज़ादी पाकिस्तान, उसके साथ साथ जो उस वक्त हालात पेश आए, जिन मुश्किलात में ये वतन बना और जिन लोगों ने ये कुर्बानियाँ दी और जो वाक़यात जिन लोगों ने वो देखे, हम उस हवाले से बात कर रहे हैं। और हम इस हवाले से एक और फैमिली के पास पहुँचे हमारे साथ, जो इस हवाले से जो उस वक्त 1947 में जब पाकिस्तान का वजूद हुआ तो हिजरत करके पाकिस्तान पहुँचे थे, राना मोहम्मद खुर्शीद अली हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं।
ہیں کیسے حالات تھے اور کیا وقت دیکھا. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ اچھا بتائیے گا, جب پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو تو آپ اس وقت کہاں پہ تھے؟ میں اپنے گھر تھا, ضلع روڈ تک, ضلع حساب میں ہمارا گھر تھا, مفتی گاؤں کا نام تھا. ٹھیک ہے, تو کیسے حالات تھے پہلے, کس طرح وہاں پہ رہ رہے تھے, اور جب آزادی کا اعلان ہوا تو کس طرح حالات تبدیل ہو گئے؟ اصل بات یہ تھا, ہمارے راجپوتوں گاؤں تھے نا, ہمارے گاؤں سے کسی میں ہندو کوئی نہیں تھا. اچھا, مسلمانوں کا علاقہ تھا. مسلمان ہی تھے وہ, راجپوت سارے مسلمان تھے, اور وہ جو ہے نا اپنی جزابی ساری ان کی تھی, کسی کا رقبہ نہیں تھا, ہمارے تھا سارا رقبہ. تو آپ سارا رقبہ چھوڑ کر یہاں پہ آ گئے؟ ایسے نہیں آئے نا, جب یہ سارا ہو گیا تو ڈیسائیڈ ہو گیا, فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان بڑھ گیا, پاکستان جانا پڑے گا. تو ہم جو کٹھے گاؤں سے 5-6, انہوں نے کہا کہ آپ ایک جگہ کٹھے ہو جائیں, بڑے گاؤں کے, ہمارا ایک بڑا گاؤں تھا بننا, اس میں کٹھے ہو گئے سب لوگ. رات کو گھروں سے اٹھے, ایسے وہ گھر سے نکلے, سب کچھ چھوڑا, گھر کو ایسے چھوڑا, تو اس گاؤں میں چلے گئے. اس گاؤں میں جا کر ٹھیک ہے, وہاں ہم 3 مہینے رہے. تو پھر آرمی آئی, ہندو آرمی, انہوں نے آگے کہا کہ آپ ایسے ہم کو لے کے چلیں گے فلاں ڈیٹ کو. انہوں نے سارے گاؤں کہا چلو جی صبر کرو. ابھی کسی کے پاس کیا تھا, کسی کیا ہوتا تھا, کیا اٹھا سکتا تھا. اب میں اپنے گھر کا بات لیں, میرے ساتھ گڈھا تھا, گڈھا سمجھتے آپ, گڈھا تھا, ایک گھوڑے تھے, گھوڑی تھی, ایک اونٹ تھا, بس کا اللہ کا شکر رہا, کافی ٹھیک ٹھاک تھے ہم. تو سب کو گھر ہم نے اٹھایا, کیا دانے اٹھایا, آٹا اٹھایا, لون مرچ اٹھایا, ایک بس سردی سی بات ہے, جو سامان تھا وہ آپ اٹھائے. اچھا, جب پاکستان تو 14 اگست کو بنا, اس سے پہلے آزادی کی تحریک جاری تھی. جب آپ سکول میں تھے تو سکول میں کس طرح کا ماحول ہوتا تھا؟ آپ بھی کیا نعرے لگاتے تھے کہ بن کے رہے گا پاکستان؟ ہاں وہ تو سب جگہ تھا, سارے ملک میں لگتا تھا, ہر جگہ, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی کسی کو. تو آپ کو وہ وقت یاد ہے کہ دوستوں کے ساتھ مل کر نعرہ لگایا ہو گلی میں, یہ سارا کچھ؟ میں ٹھیک ٹھاک 4-5 میں پڑھتا تھا. اچھا, 5ویں 6ٹھی کلاس میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, تو جب یہاں پہنچے پاکستان میں, کتنے مہینے بعد پہنچے, رستے میں کوئی مشکل آئی؟ میں انڈین آرمی لے کے چلے وہاں سے, اس میں تقریباً 60-70 ہزار لوگ تھے اس قافلے کے شکل میں, پیدل تھے. ہم پیدل چلے وہاں سے 10-12 منٹ, 1 دن 2 دن 3 دن, چلتے گئے, پورا 1 مہینہ چلے ہم پیدل. 1 مہینے تک آپ سفر کرتے رہے اور پیدل یہاں پہنچے؟ تو پھر راستے میں ایک جگہ تھی ضلع فیروز میں ڈوبائی منڈی, وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان آرمی آئے گی, وہاں پاکستان آرمی آئے گی, وہاں سے پاکستان لے گا. پاکستان سلیمان کی ہیڈ ورک سے جانتے ہو شاید آپ, وہاں سے ہم نے کراس کیا بارڈر, بارڈر کراس کرا کے انہوں نے اپنا ملک آ گئے جاؤ. اچھا, جب آپ پاکستان پہنچے, بارڈر پہ پہنچے, تو اس وقت کیا جذبہ تھا کہ اپنے ملک میں پہنچ گئے ہیں؟ تو اس وقت کیا جذبہ تھا؟ لوگوں کو سارا نعرے لگاتے ہیں لوگ پاکستان میں, اور وہی پاکستان لوگ سیٹل ہونے شروع ہو گئے تھے. لیکن ہمارے کچھ سیاست میں ضلع حصار تھا ہمارا, وہ بڑا سارا ضلع تھا, 7 تحصیلیں جس کی, ضلع ملتان بڑا تھا, انہوں نے کہا ضلع حصار سارا ضلع ملتان میں جائے گا. وہاں سے پھر چل پڑے ہم پیدل, چلتے گئے وہ 150 میل کا فاصلہ, وہ بہاڑی آ گیا. اچھا, ہجرت کی آپ لوگوں نے, ایک ہجرت مکہ سے مدینہ میں کی گئی, اور دوسری ہجرت ہمیں دیکھی کہ آپ لوگوں نے 1 مہینہ پیدل سفر کیا ہندوستان سے پاکستان. ایک عظیم سفر تھا آپ لوگوں کا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ, میں صرف وہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ پاکستان کی سرزمین میں پہنچے, آپ پہلی بار پہنچے تھے لاہور میں؟ لاہور میں ہم تو بارڈر سے آئے تھے, سلیمان کے برے والا بہاڑی کی طرف سے, اس سڑک پہ, یہ ملتان دہلی روڈ ہے. تو آپ کا, ویسے میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا علاقہ نہیں تھا, آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے جہاں آپ کے آباء و اجداد تھے, یہاں آ کر کتنی خوشی ہو رہی تھی جب آپ نے کو پتہ چلا کہ ہم پاکستان پہنچ گئے؟ لوگوں کو سیٹل ہو جائے, لوگوں نے گورنمنٹ نے کہا آپ اپنا دیکھ لیں کچھ جگہ بیٹھ کے جا کے چکوں میں, جہاں چک میں کوئی چک میں بیٹھ گیا, کوئی جگہ بیٹھ گیا, جا کے چلا گیا, وہاں جا کے سیٹل ہو گیا. تو گورنمنٹ نے اس نے دیا 1 ایکڑ فی آدمی کے حساب سے رقبہ کہ آپ کاشت کریں کھائیں. 1 ایکڑ میں کیا ہو سکتا ہے, ایک آدمی کیا کر لے گا؟ اس کے بعد بیل تھے, کچھ ویسے کچھ بھی نہیں تھا. یقیناً مشکلات ہوئی ہوں گی اس کے بعد. اچھا, اب جو دیکھتے ہیں, اب جس طرح کے حالات دیکھتے ہیں, آپ پاکستان کو قائم ہوئے 73 سال ہو گئے ہیں, ہم 74ویں سالگرہ منانے جا رہے ہیں, کیسا پاکستان دیکھتے ہیں, کیا پیغام دیں گے آپ؟ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مہاجروں کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اتنی مدد کرے گا کہ ان کو اولاد زیادہ دے گا, ان کو رقم فیصلہ زیادہ دے گا, مکان زیادہ دے گا. قرآن نے کیا فیصلہ کیا ہے,
اس کے حساب سے لوگ آئے تھے، اس حساب سے لوگوں نے آپ مطمئن ہیں اپنے فیصلے پہ؟ بہت. میں جو ہم پاکستان میں کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. وہ ایک گڈھا تھا، 2 برد تھے، باقی سارا سامان وہیں رہ گیا تھا، کچھ نہیں لائے تھے، کچھ بھی. تو اس لوگوں کو پیسے بھی نہیں تھے اس زمانے لوگوں پہ. وہ 46 میں ہم نے مکان نیا بنایا، پیسے جو 4 روپے لگا دیے، خالی پالی تھے. بس اللہ نے کو پتہ نہیں کیا بندوبست کیا، نیچے زمین پہ سوتے تھے. بس اللہ نے محنت کر کے آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ کیا گیا تھا وہاں سے آنے کا، جو آپ کے والدین نے کیا تھا، اچھا فیصلہ تھا؟ اس کو چارہ کار نہیں تھا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں؟ نو وے آؤٹ. اب جو حالات ہیں وہاں دیکھ لیں، وہاں کم سے کم 26 کروڑ مسلمان ہیں، 20-25 کروڑ مسلمان اب بھی ہے وہاں، لیکن ان کے حالات تو ٹھیک نہیں ہیں. ان کے ماموں ہیں، باقی چھوڑے سگے ماموں ہیں ان کے، وہاں سے صحیح حالات آتے رہتے ہیں. مشکل حالات میں گزارے ہیں وہاں؟ ڈیفینیٹلی رہنا. وہ بڑے بدتمیز لوگ ہیں ہندو جو ہے نا، وہ کہتے ہیں 1000 سالوں بدل ڈاکے کا انہوں نے پھاڑا ڈاکا ہوا تو اندرا گاندھی نے یہی کہا تھا کہ 1000 سال بدلا لیا ہم نے. تو ان کے دل میں یہ بات ابھی تک ہے. تو ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہم بھی ہجرت کریں گے. بس اس کام پہ اس لوگوں نے ہجرت کری اور کوئی بات نہیں تھا. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے جانا کہ پاکستان کے حصول کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی، ان لوگوں کی زبانی جانا جنہوں نے اس پاکستان کو بنتے دیکھا، اس پاکستان میں آنے کے لیے ہجرت کے دوران جن مشکلات کا مقابلہ کیا، اپنے پیاروں کو اس حوالے سے شہید ہوتے دیکھا، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے وہاں پر دیکھا. اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یقیناً یہ ایک عظیم ہجرت تھی جو کہ اس حوالے سے کی گئی، جو اسلام کے نام پر کی گئی، لا الہ الا اللہ کے نام پر کی گئی، نظریہ پاکستان کے نام پر کی گئی. اور آج بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے. یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا قیام کوئی عام بات نہیں تھی. پاکستان کے قیام میں، پاکستان کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کا لہو شامل ہے. تو اس پر ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس ملک کو مستحکم کرنے میں، اس ملک کے استحکام کے لیے اپنی جدوجہد کو تیز کرنا ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.